Hello students, a very good morning to you. Today we will continue chapter 6 of class 12, that is molecular base of inheritance, and today we will complete our chapter. And today's topic is the most important topic because today we will know that how in forensic laboratories the DNA fingerprinting helps in identifying the criminal cases in case of criminals and paternal disputes. So let's start chapter 6. That is molecular basis of and as I have told you, while we are making a probe, means we already discussed about VNTR. VNTR means variable number of tandem repeats. And remember students, the VNTR is always varies from person to person. And it also shows high degree of polymorphism. Means at genetic level, it shows many changes. And as I have explained you, it may vary from 0.1 to 20 kb. So when the VNTR, to study the VNTR, when a probe is hybridized, then we can see through autoradiograph or autoradiogram we can say, in which many bands, or if we stain it, then we can see many colorful bands. So these colorful bands helps in identifying the number of VNTR. Remember student, this is the VNTR is the most important term. Clear? And each and every individual person shows differences in their VNTR. This line should be remembered. Each and every individual person shows differences in their VNTR. But in case of twins, means you know that monozygotic twins means in case of monozygotic twins, the VNTR is same, means the number of tandems is same. So monozygotic twin means when one ovum and one sperm fertilized, and after fertilization the zygote goes through cleavage and two different zygotes or embryo are formed. Means from single ovum and single sperm after fertilization through cleavage they make two individuals and they carries all the similar characters. Means both the individuals are formed, both the embryos are formed. इसका मतलब होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस का मतलब होता है जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होता है तो जो एम्ब्रियो जो जाइगोट बनता है वो क्लीवेज में जाता है, और फर्स्ट क्लीवेज जब होता है तो वो एक एम्ब्रियो के बदले दो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और वो दोनों के दोनों एम्ब्रियो का सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम है. इवन उनकी जो नंबर ऑफ टैंडम्स है VNTR हम जिसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम्स रिपीट्स. सो जो नंबर ऑफ टैंडम्स है इन दोनों इस केस में सेम है. इसको छोड़ के बाकी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशंस है जितने भी इंडिविजुअल्स है सब में ये डिफरेंट होता है. तभी मैंने यहाँ पे लिखा है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन शोज डिफरेंस इन VNTR except monozygotic twins. I have explained you. So this is a sensitive case. Means if suppose दो भाई हैं जो कि ट्विन्स है और एक ने मर्डर कर दिया और दूसरा, जब दोनों का फिंगरप्रिंटिंग को मैच किया गया फोरेंसिक लैब में तो दोनों का ही सेम आया. तो यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा है, एक क्राइम कर रहा है और एक का क्राइम को दूसरे को भुगतना पड़ रहा है. तो ये बहुत सेंसिटिव केस है. तो ऐसे केस में जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसको मोर क्लियरली जानने के लिए PCR का यूज किया जाता है. PCR मतलब
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये भी आपको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। पीसीआर में क्या होता है, जो डीएनए होता है, एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए, उसका एम्प्लीफिकेशन करके मल्टीपल मिलियंस नंबर बनाया जाता है और उनको हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया जाता है। और पीसीआर ही हेल्प करता है डिफरेंस करने में कि कौन सा कल्प्रिट है और क्रिमिनल है, कौन सा नहीं। तो ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस केस में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसके लिए कौन हेल्प करता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? सो हाउ इन अ फोरेंसिक लैब you have already heard in TV serials that when any dispute in case of paternity dispute, it means जैसे कि बेटा किसी और का है और आके कोई अपना राइट बताता है कि ये मेरा बेटा है, तो इस केस में क्या होता है, फोरेंसिक लैब में दोनों का ही डीएनए टेस्ट किया जाता है। मतलब जो फादर है जो बता रहा है कि ये मेरा बेटा है उसके साथ और जो ओरिजिनल फादर है उसके साथ, तो जब उसका टेस्टिंग की जाती है फोरेंसिक लैब में, याद रखना फोरेंसिक लैब, आपने सुना भी होगा फोरेंसिक लैब। फोरेंसिक लैब में इसका टेस्ट करके कैसे पता लगता है कि ये रियल में किसका बेटा है, या फिर अगर किसी का खून हो जाता है या मर्डर हो जाता है, इन केस ऑफ मर्डर केस कैसे पता लगाता है, जबकि एक किसी का मर्डर हो गया वहां पे 5 लोग थे, तो एक्चुअल में मर्डर किसने किया वो कैसे पता लगता है। क्योंकि जब हम मर्डर सीन को देखते हैं, इवन टीवी में भी देखते हैं, याद रखना बेटा ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब हम मर्डर सीन को देखते हैं वहां से आपने देखा होगा वो ग्लोव्स पहने हुए होते हैं और कलेक्ट करते हैं एविडेंसेस। एविडेंसेस मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल हेयर जब एक हेयर निकल जाता है, हेयर फॉल जिसको हम बोलते हैं, आप देखना उसके जो बिल्कुल रूट पे, हेयर की रूट पे फॉलिकल होता है, मतलब लिक्विड लाइक सब्सटेंस होती है, उसमें भी वही कैरेक्टर होता है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है, मतलब वो भी डीएनए को कैरी करता है। सलाइवा जो होती है हमारी उसमें भी डीएनए होता है। इवन ब्लड सेल में तो होता ही है, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, मतलब हेयर फॉलिकल हो गया, सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, तो इनमें से भी क्या करते हैं, डीएनए मैच कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा एक ऐसा एविडेंस को फाइंड आउट किया जाता है, ढूंढा जाता है जो कि कुछ हिंट दे दे कि एक्चुअल में जो मर्डर हुआ है या जो क्रिमिनल केस हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, भले ही 5 लोग थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे जो क्रिमिनल से मर्डर करने के बाद उसको सीबीआई या फिर फोरेंसिक लैब के हेल्प से, जैसे कि आप देखते होंगे सीरियल्स सीआईडी वगैरह और सावधान इंडिया, तो उसमें यही दिखाता है कि कैसे एक कल्प्रिट को पकड़ा जाता है, किस बेस पे, उसके डीएनए मैच करके। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सपोज फॉर एग्जांपल ए बी सी है, ठीक है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। सपोज सी का हो गया यहाँ पे मर्डर, सी का हो गया मर्डर। अब सी के मर्डर जहां पे हुआ उस जगह से बी का भी कुछ ऐसा प्रूफ मिला जिसके वजह से बी को भी डाउट किया जा रहा है, और ए का भी कुछ ऐसे एविडेंस मिला जिसकी वजह से ए को भी डाउट किया जा रहा है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, उस जगह से जितने भी सपोज हेयर मिले या नाखून मिले या ब्लड मिले, कुछ भी मिले, या मांस का एक टुकड़ा मिले, कुछ भी मिले, तो उसको लेके क्या किया जाता है, फोरेंसिक लैब में डिपॉजिट किया जाता है। फोरेंसिक लैब में डिपॉजिट करने के बाद वो 1 दिन के अंदर या फिर 12 घंटे 10 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देता है। क्या देता है कि जो खूनी है वो बी है या फिर खूनी जो है वो ए है। वो कैसे देता है ये आपको नहीं पता, तो अभी पता चलेगा कि कैसे उनको फोरेंसिक लैब में काम कर रहे लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में खून किसने किया है। ठीक है, तो ये जानने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है और एक 22 पेयर ऑटोसोम्स होती है। तो हर एक क्रोमोसोम में जो जीन होता है वो अलग होता है। फिर से जैसे कि हमने VNTR के बारे में बोला था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है इस टॉपिक के अंदर, तो ये जो VNTR है वो कंपेयर किया जाता है किसका, बी का किया जाता है, ए का किया जाता है, किसके साथ, सी के साथ। तो सी के साथ जब कंपेयर किया जाता है ये देखा जाता है कि सी के पास से जो मिला है वो बी के साथ मैच कर रहा है
या फिर ए के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, सी के पास जो एविडेंस मिला है वो किसके साथ मैच कर रहा है, बी के साथ कर रहा है या फिर ए के साथ कर रहा है। तो इसको जानने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं हम, क्रोमोसोम। अलग अलग क्रोमोसोम को जब हम स्टडी करेंगे, हर एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट VNTR जो टैंडम्स होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 में 10 टैंडम्स है, तो हो सकता है आपके क्रोमोसोम नंबर 1 में 11 टैंडम्स हो, या फिर 15 हो, या फिर 10 ही हो। अगर मेरे में 10 है, आपके में 10 है, तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया। तो उस केस में क्या होता है, और क्रोमोसोम नंबर को स्टडी किया जाता है। अगर उसमें क्रोमोसोम नंबर 2 में भी सेम आ गया दोनों का, तो क्रोमोसोम नंबर 3। ऐसा नहीं हो सकता कि जब सारा क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है, पूरा का पूरा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है, जो VNTR ओवरऑल एट लास्ट होता है वो सिमिलर होगा, वो हमेशा ही डिसिमिलर होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सपोज सी के पास जो एविडेंस मिला है उसका जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 1 सपोज मानते हैं हम, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो टैंडम्स था, लेट्स थिंक दिस इज एज टैंडम्स 1, इसको 1 काउंट कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे जो टैंडम मिला क्रोमोसोम नंबर 1 पे वो था 11। ठीक है, और बी के पास जो मिला सेम क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए यहाँ पे भी 11 हुआ, और ए के पास जो मिला यहाँ पे सपोज 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये यहाँ पे कितना मिला, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 है, बी के पास भी 11 है, और इसके पास कितने हैं, इसके पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 है। तो क्या इस एक क्रोमोसोम को स्टडी करके हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि बी ने जो है वो क्राइम किया? नहीं, तो हमें और क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है। तो और क्रोमोसोम नंबर अगर देखेंगे, सपोज हम क्रोमोसोम नंबर 2 देखेंगे या फिर 3 देखेंगे, तो जब हम क्रोमोसोम नंबर 1 या 2 या 3 देखेंगे तो उसमें हो सकता है हमें कुछ और अलग मिले। तो यहाँ पे जो एविडेंस, दूसरा एविडेंस मिला, वो सपोज लेते हैं हम क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर चलो 7 ले लेते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 पे हमने देखा कि सी के पास जो मिला है, जो हेयर फॉलिकल मिला था उसमें क्या था, कितने टैंडम्स थे, 11, और वही 11 किसके पास से मिला, बी के साथ। जब वो एविडेंस को लाके उसका डीएनए और इसका डीएनए, बी का डीएनए जब मैच किया गया तो टैंडम्स दोनों का सेम आया, पर ए का सेम नहीं आया, ए का अलग आया। तो एक क्रोमोसोम को स्टडी करके तो हम बता नहीं सकते, या फोरेंसिक लैब वाले नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा क्रोमोसोम को स्टडी किया। तो जब क्रोमोसोम नंबर 7 को स्टडी किया, इसके पास जो टैंडम्स देखा गया, इसके पास सपोज टैंडम्स थे 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना था टैंडम्स, 9 था। ये वाला याद रखो, टैंडम्स है मतलब रिपीटेड जो सीक्वेंसेस होता है वो है। तो यहाँ पे 9 मिला। तो यहाँ पे जब देखा गया तो इसके पास कितना मिला, इसके पास 7 मिला, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास मिला 7, इसके पास 9 मिल रहा है। तो इसका मतलब बी के साथ मैच नहीं कर रहा है। पहले क्रोमोसोम नंबर 1 में सी के पास से जो एविडेंस मिला था वो बी के साथ मैच कर रहा था, पर जब हम क्रोमोसोम नंबर 7 के पास आ गए तो वहां पे सी के पास से जो एविडेंस मिला, सपोज हेयर फॉलिकल मिला, उसमें जो टैंडम्स थे वो 9 थे, पर बी का जब देखा गया वही सेम क्रोमोसोम नंबर 7 के लिए इसमें टैंडम्स 7 मिले, और अगर ए का देखा गया तो ए का मिला इसमें 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे कितना मिला, 9। तो यहाँ पे ए के साथ मैच कर रहा है, पहले केस में बी के साथ मैच कर रहा था। तो यहाँ पे मैटर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मोर क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे हम लेते हैं क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम नंबर हमने 16 लिया। क्रोमोसोम नंबर 16 पे ये देखा गया कि इसमें जो है वो 8 है, इसका जो टैंडम मिला है वो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो कितना मिला यहाँ पे 8 मिला। फिर सेम बी के साथ मैच किया जाएगा, वो जो एविडेंस मिला था हेयर फॉलिकल बी के ब्लड के साथ या और कोई चीज के साथ जिसमें डीएनए हो, तो उसके साथ जब मैच किया गया इसमें भी 8 मिला। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितना मिला 8। अब यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना मिला 5। अगर हम ये 3 क्रोमोसोम को देख रहे हैं तो 3 क्रोमोसोम में अभी आप बताओ क्रोमोसोम नंबर 1 पे बी के पास कितना 11, सी से जो एविडेंस मिला है उसका कितना 11, तो यहाँ पे ए के पास नहीं। फिर सेकेंड देखते हैं, अगर क्रोमोसोम नंबर 7 देखते हैं तो इसके पास कितना है 9, इसके पास कितना है, इसके पास भी 9 है, तो ये हो गया, इसके पास से नहीं मिला। फिर नेक्स्ट केस देखते हैं, इसके पास कितना है 8, इसके पास कितना है 8, इसके पास कितना है 5। तो अगर आप देखोगे ए को देखो, बी को देखो और सी के पास से जो एविडेंस मिला है उसको देखो, तो सी के पास से जो एविडेंस मिला है टोटल 3 क्रोमोसोम को यहाँ पे स्टडी किया गया, क्रोमोसोम 1, देन क्रोमोसोम 7, देन क्रोमोसोम 16। तो यहाँ पे सी से मिला हुआ एविडेंस सबसे ज्यादा मैचिंग किसके साथ कर रहा है, बी के साथ कर रहा है या ए के साथ कर रहा है। ए के साथ सिर्फ एक जगह पे मैच कर रहा है और बी के साथ 2 जगह पे मैच कर रहा है। ऐसे ही और क्रोमोसोम नंबर को जब स्टडी किया गया ये देखा गया कि सी के पास जो VNTR मिल रहा है उसके एविडेंसेस से वो बी के साथ ज्यादा रिजेंबल करता है, ज्यादा सिमिलर है। इसीलिए ओवरऑल क्या रिपोर्ट दे देते हैं कि जो बी है उसने खून किया है, क्योंकि इसका डीएनए और इसका डीएनए क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट के बेस पे, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम बोलते हैं, फोरेंसिक लैबोरेटरीज में काम कर रहे लोग ये प्रूव कर देते हैं कि जो खून हुआ है या फिर जो मर्डर हुआ है वो एक्चुअल कल्प्रिट कौन है। क्लियर है, तो आप बुक में भी ये दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हो, टैंडम्स को काउंट कर सकते हो। मैंने आपको समझने के लिए ये अपनी तरफ से मैंने आपको समझाया है ताकि समझ में आए। आप बुक को फॉलो कर सकते हो और ये डायग्राम को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इससे रिलेटेड आई विल गिव यू सम वर्कशीट्स एंड ईच वर्कशीट विल कंटेन 10 to 15 क्वेश्चंस and the whole week you have to do the worksheets and practice, and on Saturday, in the coming Saturday I will take your test of this chapter, because if you complete chapter 5 and chapter 6 thoroughly, as you know 7 chapter is deleted, so both these chapters can help you to score 18 marks. 18 marks will come from these 2 chapters. Each and every topic of this chapter is important. Clear? And whether the topic contains theory, then you have to memorize it. आपको याद रखना पड़ेगा, अगर थ्योरेटिकल है तो समझ के याद रखना है, अगर समझने वाला है तो उसको आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आप समझोगे। ठीक है, तो जो वर्कशीट मिलेगा आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, चाहे नेट से ढूंढो या बुक से ही मिल जाएगा सारा आंसर, और उसको आपको अच्छे से लर्न करना है सिर्फ इसी चैप्टर का। ठीक है, तो इसका रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम वर्कशीट के थ्रू पढ़ेंगे पूरा हफ्ता, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चंस हो वो कवर हो सके, और कोई डाउट भी होगी आपको आप लोग पूछ सकते हैं।